Hello everyone, welcome back to CY competition classes. Today we will discuss about the crystal field theory of d orbitals in the octahedral complexes. In the previous video, we have discussed the crystal field theory, coordination compound, Werner coordination theory. You must watch the previous video completely. According to crystal field theory, the d orbitals and the metal all have the same energy in the free atoms, each called degenerate orbitals. The d orbitals of the metals ion all have the same energy and these orbitals are called the degenerate orbitals. An electron can occupy any of these orbitals. जो भी आपके 5d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी किसी भी सिंपल मेटल्स आयन के लिए समान होती है। इसी को आप डिजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। कोई अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये पांचों ऑर्बिटल्स में से किसी एक ऑर्बिटल्स में रह सकता है। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, व्हेन ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, द लिगेंड destroy the degeneracy of these orbital, that is orbital now have different energy. जब भी कोई भी लिगेंड इस मेटल से अप्रोच करता है, अटैक करता है, तो इस मेटल के जो 5d ऑर्बिटल्स हैं इसकी डिजेनरेसी को रिमूव कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जो 5d ऑर्बिटल्स हैं इसकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। फर्स्टली वी नो द शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स. Shape of d orbitals, the d orbitals 5d orbitals have the dxy, dxz, dyz, dx square y square, dz square, x axis y axis, dxy, dxz, dyz, dx square y square and dz square. These are the shape of 5d orbitals. In all of these 5d orbitals, three orbitals dxy, dxz, dyz, the lobes are present in between the axes. Lobes are present in between the axes, and these three orbitals are identical shape, and these three orbitals are called T2g orbitals. Other two orbitals dx square, y square, dz square, lobes are present along the axis. These have different shape and called the EG orbitals. Firstly, we know the octahedral complexes. In case of octahedral complexes, metal present in the central metal atoms present in the centers, all ligands present in the corners, 6 corners. These are the metal orbitals and ligand orbitals approach to each other and increases the energy. If all the ligands are symmetrically positioned, equal distance, the energy of each 5d orbital will rise by same amount. जो भी लिगेंड है अगर स्पेरिकली फील्ड है यानी सेम पोजीशन में इक्वल डिस्टेंस पे है तो एनर्जी सेम अमाउंट से क्या होगी डी ऑर्बिटल्स की इंक्रीज करेगी. दिस इज ओनली ए हाइपोथेटिकल. दिस कंडीशन इज ए हाइपोथेटिकल. They have higher energy situation and this energy than free metal ion state is called barycenter. This situation is called the barycenter or center of gravity. In this case, metal ions, all ligands have the spherical. The metal orbitals and ligands orbital approach to each other and increases the energy. Degenerate orbitals of metal ions dxy, dyz, dzx, t2g orbitals and eg orbitals. When the metal orbitals and ligand orbital spherically filled and repel to each other, they increase the energy, average energy of orbital in its spherical crystal field. This is the hypothetical situation. We must know the d orbital along the axis, the d orbital along the axis, dx square, y square and dz square, dx square, y square and dz square. This is the EG orbitals along the axis will be more strongly repulsed than the orbitals with lobe directed between the
एक्सिस। जो भी आर्बिटल आपके एलॉन्ग दी एक्सिस होंगे, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इसमें एलॉन्ग दी एक्सिस होंगे तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा उस कंपेयर में जहाँ पे आर्बिटल्स क्या होंगे, इन बिटवीन दी एक्सिस प्रजेंट होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में प्रजेंट होंगे। तो T2G के केस में क्या होगा, रिपल्सन कम होगा क्योंकि आर्बिटल्स क्या हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस प्रजेंट हैं। लेकिन EG के केस में रिपल्सन ज़्यादा होगा। दस द एनर्जी ऑफ EG ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज मच मोर देन T2G ऑर्बिटल्स। इसीलिए जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो EG की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है देन केस ऑफ T2G। EG have higher energy due to greater repulsion of lobes along the axis. Lesser repulsion lobes present in between the axis in the T2 orbital. Thus, the energy of EG orbital will increase much more than T2G orbitals. Greater is the repulsion, greater will be the increase in energy. जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। The separation of 5d orbitals of the central metal cation into two sets having different energy is called crystal field stabilization energy। यानी जो भी d ऑर्बिटल्स हैं उनका सेपरेशन होगा दो सेट में, एक आपका EG होगा और एक T2G होगा। इन्हीं सेपरेशंस को आप क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब हम देखेंगे T2G और EG का जो आपका ऑर्बिटल्स है इसका स्पेलिटी इन ऑक्टाहेड्रल केस में। 5d ऑर्बिटल्स, दिस इज डी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। जब मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे थे तो हाइपोथेटिकली कुछ एनर्जी इसकी इंक्रीज कर रही थी, जिसे आपने बोला था बैरी सेंटर्स यहाँ पे जनरेट होगा। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्पेरिकली क्रिस्टल फील्ड हाइपोथेटिकल। Firstly, T2G orbitals in between the axis, hence the energy decreases. EG orbital along the axis, hence energy increases. इसीलिए EG ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, यहाँ से स्प्लिट होके ऊपर चला जाएगा और T2G का ऑर्बिटल्स क्या यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि T2G EG ऑर्बिटल ऊपर चला गया और T2G ऑर्बिटल्स क्या आ गया, नीचे आ गया। ये जहाँ पे आपका हाइपोथेटिकली है, इन नो स्प्लिटिंग स्टेट है, इसे बैरी सेंटर्स भी बोलते हैं। इस बैरी सेंटर से और EG के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, प्लस 0.6 डेल ओ होगा, क्योंकि ऊपर जाने पे एनर्जी क्या हो रही, इंक्रीज कर रही है। इस बैरी सेंटर से लेके T2G के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, -0.4 डेल ओ होगा, क्योंकि जो भी आप नीचे आने पे एनर्जी क्या हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है, लेस हो रही है एनर्जी। अब जो भी आपका डी ऑर्बिटल्स हैं ये -2/5 यानी ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, जो भी EG स्प्लिट हो रहा है इसके ऊपर 2/5 डी ऑर्बिटल्स में, प्लस 3/5 3 T2G ऑर्बिटल डिवाइड बाई 5 डेल 0। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 डेल ओ। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -0.4 डेल ओ। तो आप याद रखेंगे T2G से बैरी सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हो क्या है, -0.4 डेल ओ, और T2G से EG से बैरी सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है प्लस 0.6 डेल ओ। प्लस क्यों है, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज कर रही है, माइनस क्यों है, एनर्जी डिक्रीज कर रही है। T2G और EG के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल ओ इज इक्वल टू होता है 10dq। डेल ओ इज इक्वल टू क्या होता है, 10dq। अब 0.6 डेल ओ को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10dq से तो क्या आ जाएगा, +6dq। इसी अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो -4dq आ जाएगा। 1 डेल ओ इज इक्वल टू 10dq होता है। dq क्या है, एक यूनिट है एनर्जी मेजरमेंट की। ओ रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल ओ में रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल के लिए। जहाँ पे आप ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे केस में तो वहाँ पे आप डेल ओ लिखेंगे, टेट्राहेड्रल में डेल टी हो जाता है। तो ये तो आपका सिंपल केस था कि
कैसे आपकी स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स में, आप इसको याद रखेंगे। T2G और EG के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे डेलो बोलते हैं। डेलो इज इक्वल टू 10dq होता है और रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल में जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं स्प्लिट होते हैं टू सेट्स में, EG और T2G में। EG की एनर्जी हायर होती है क्योंकि लोब से अलॉन्ग दी एक्सिस होते हैं। T2G की एनर्जी क्या होती है आपकी लोअर होती है क्योंकि बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। ये है आपका कंप्लीट फिगर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोट्स बुक में आप इसको बनाइए। फैक्टर इफेक्टिंग डेलो, जो भी आपकी डेलो की वैल्यू है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू है डेलो की वो भी इंक्रीज करेगी। सेकेंड है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट समान हो तो जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो डेलो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड क्या है क्वांटम नंबर्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। डेल ओ जो की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा 5D ट्रांजिशन सीरीज में होगा, फिर 4D में होगा, फिर 3D में होगा। फॉर एग्जाम्पल्स आपका क्वेश्चन है BH2O6 2+ में और CrS2O6 3+ में डेल ओ की वैल्यू किसमें ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम 3+ की ज़्यादा है वेनेडियम 2+ से, तो यहाँ पे जो आपकी डेल ओ की वैल्यू होगी ज़्यादा होगी। इसी अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक 3D3 दिया है और एक 3D4 दिया है। विच हैव दी हाई वैल्यू ऑफ डेलो, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ डेलो डिक्रीजेज। तो 3D3 में आपकी डेल वैल्यू ओ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करे इंक्रीज करेगी। जितने नंबर कम डी इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी। कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम, अगर इस केस में आपको देखना है CuNH3 6 हो गया, RHNH3 6 हो गया, IrNH3 6 हो गया। विच हैव दी हाई वैल्यू ऑफ डेलो, 5D इरिडियम हैव दी हाई वैल्यू ऑफ डेलो, देन रोडियम, देन कोबाल्ट। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डेलो, 3 पॉइंट आप मस्ट याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायंस, सेम चार्ज बट डी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट। थर्ड क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायंस। इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, आई हैव सॉल्व टू योर क्वेरी। दिस इज द degenerate orbitals, you must know shapes of d orbitals, octahedral cases, hypothetical center, barycenter, center of gravity, crystal field stabilization energy, crystal field stabilization in T2G and EG. What is del O? Del O is equal to 10dq. Thanks for watching this video.